Hey viewers, I am back with the new video, and in this video we will discuss about how to prepare for the SSBS. If you are really sure about your written, that you will clear your written, then you have to prepare for SSB as well. Okay, so the first and foremost thing you need to understand to clear SSB, you should have that power of expression. Before that, let me introduce something about SSB. Okay, so as you know that in SSB interview there is a 5-day process in which you will be assessed by assessors for the psychological part, for the interviewing part and GTO part. Okay, so I will not discuss about that thing in this video कि कैसे कैसे तुमको ये इम्प्रूव करना है और व्हाट मिस्टेक्स यू नॉट टू कमिट या व्हाट टू डू इन दीज टास्क. ओके, व्हाट टू डू इन दीज टास्क. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस थिंग्स. ओके, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट what to do now. Okay, if you are really sure about your written, अगर आपको पूरा श्योर है कि हाँ भाई SSB आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है. if you are sure about your written pass, then the first thing you need to improve, that is your communication skills. Okay, the most important thing, that is communication skills. Okay, क्योंकि भाई इट इज़ रियली बेनिफिशियल टू योर साइकोलॉजिकल पार्ट, योर इंटरव्यूइंग पार्ट एंड GTO. हाउ? इन साइकोलॉजिकल पार्ट, एज यू नो, देयर इज अ series of tests. First of all, your TAT, in which you have to write 12 stories on the pictures. So you have to write the pictures in English. ठीक है. Now WAT, word association test. So the whole psychological part is in English. So improve your communication skills such that you will learn English as well as the grammar part. ठीक है, ग्रामर पार्ट भी देख लेना भाई, कौन सी वर्ब के बाद कैसे कैसे क्या यूज़ होना है. Otherwise you will commit a lot of mistakes in your TAT. कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ भी लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे या सेकंड फॉर्म लगा दोगे. ठीक है, तो जब असेसर उस स्टोरी को पढ़ेगा ना, तो ठीक है, यू रोट अ स्टोरी और यू रोट अ गुड स्टोरी. लेकिन आप सोचो ना कि अगर उसमें एरर्स दिखेंगे या फिर अगर सेंटेंस ऐसा दिखेगा कि सेंटेंस में कुछ अलग है, ठीक है, सही से फ्रेम नहीं हो रहा वो सेंटेंस, तो ये असेसर को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई सेंटेंस ठीक नहीं है. ओके, ही विल गेट योर आइडिया व्हाट यू वांट टू डू इन योर स्टोरी, ही विल अंडरस्टैंड वेल, बट यू डोंट हैव टू कमिट एनी मिस्टेक ना, जिससे कि उसको एक अलग एक्सप्रेशन दिखे तुम्हारा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू इम्प्रूव योर ग्रामर पार्ट. That will help you in your psychological part. और एक और चीज़, डोंट यू थिंक इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, तो अगर तुम अपने साइकोलॉजिकल पार्ट की स्पीड बनाना चाहते हो तो अपने ग्रामर पार्ट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है यू विल एबल टू राइट दैट. और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है, बिकॉज ऑफ इंग्लिश SSB तुम्हारे लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड. इनफैक्ट आई कैन से कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम्युनिकेट विद अफसर्स, हाउ टू कम्युनिकेट इन ग्रुप, you can't be recommended. So you have to understand this fact. English is the first and foremost thing in the SSB. Okay. So now, how English plays important role.
I have talked about psychological part. Okay, now I will talk about interview part. Interview part. आप खुद सोचो, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कर्नल रैंक और ब्रिगेडियर रैंक अफसर, ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैम क्लियरली, डोंट यू थिंक इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? भाई सही बता रहा हूँ, इफ़ यू आर रियली गुड इन कम्युनिकेशन ना, सो योर कॉन्फिडेंस will be at the top in interview. Let me introduce a deadly combination in interview which I feel that was the important thing in my interviewing part, and that is the reason of getting recommendation. Okay, in the interview part, if you have knowledge of what? Knowledge of yourself, surroundings, world, India, like if you have knowledge or content, जो भी तुम बोल रहे हो अगर उस चीज़ के बारे में तुम्हें पता है कि what are you saying to him या what he is asking to you, if you know that knowledge, if you have that knowledge or content, बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम्हारे पास उस चीज़ का आंसर है, बहुत अच्छा डाटा है जो कुछ भी वो पूछ रहा है. बट इफ़ यू कैन एक्सप्रेस वेल इन फ्रंट ऑफ हिम, डोंट यू थिंक इट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन? सो व्हाट इज़ डेडली कॉम्बिनेशन इन इंटरव्यू? योर नॉलेज, दैट इज़ योर कंटेंट. तुमने कितना कंटेंट तैयार किया है, व्हाट यू नो अबाउट इंटरव्यू, जो तुम बोलने वाले वो चीज़ें तुम्हें कितनी पता है, प्लस your communication skills. Again communication skills come. Your communication skills, don't you think it is a deadly combination that will also introduce your confidence, self confidence, not only self confidence, it will increase your power of expression, how you express your things in front of him. Really, I am telling you, I have faced 5 interviews in my life till now, and out of 5, the first one I was not able to express myself clearly. Whatever I think at that time, I was not able to confess with him. I really felt nervous, and that is the reason of getting confidence out in the first interview, because I was a fresher like you. बिल्कुल आपकी तरह फ्रेशर था मैं, एक बंदा जो एक विलेज बैकग्राउंड से है, नेवर नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स अ रूरल पर्सन नो और अ विलेज बैकग्राउंड पर्सन नो. तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कम्युनिकेशन स्किल्स की, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट. जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो जो कुछ तुम्हें पता है, so do you think you are going to recommend? Now second SSB, third SSB, then fourth, then fifth. So what happened? I increase my power of expression. How? I increase my knowledge, that is my content. जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर मुझे कितनी नॉलेज है. And the second thing, that is communication skills, the most important communication skills. Because I feel, I am again telling you, if you have good communication skills, and I can say, मैं नहीं बोल रहा भाई एक्सीलेंट हूँ, एक्सीलेंट ना हूँ, बट यू शुड एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम. इतना होना चाहिए कि अगर वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, यू शुड नॉट बी हेजिटेंट. इफ़ यू गेट हेजिटेट, श्योरली योर कॉन्फिडेंस विल बी डाउन. एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, कुछ भी हो जाए पर्सनल इंटरव्यू में, चाहे तुमको कितने भी आंसर्स ना आते हों, बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोना. इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, जस्ट से सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो. नहीं आता तो नहीं आता. अगर ठीक है तुम्हारे अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो
स्किल्स तो हो कम्युनिकेशन वाली जिससे कि तुम उसको बता पाओ कुछ भी, क्या चीज़ तुम्हें पता है क्या चीज़ नहीं पता। नाउ यू हैव सीन कि ये साइकोलॉजी में कैसे काम करती है इंग्लिश, यू हैव सीन इंटरव्यू में कितना पार्ट है इसका। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि जीटीओ में इसका क्या रोल है। देखो भाई, जीटीओ में एज यू नो मैं पूरी स्ट्रेटेजी ना आप लोगों के लिए, मैं पूरा जो एसएसबी में क्या क्या होता है, क्या मिस्टेक्स मैंने की, क्या क्या मैंने किया एंड अटेम्प्ट में, ऑल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है और अभी से क्या चीज़ इंग्लिश के अलावा कर सकते हो। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फॉर दिस एनडीए पार्ट, क्योंकि एसएसबी से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होती हैं और ये 1 महीने में नहीं होंगी, इट नीड्स अराउंड 2 to 3 मंथ्स। आपका 1 महीना रिजल्ट आने में लगेगा, 1 महीना आपकी सिलेक्शन डेट्स आने में लगेगा, अराउंड 15 डेज आपके फिर एसएसबीज के होंगे। सो अराउंड यू हैव मोर देन 2 मंथ्स। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करो अपने इन 2 महीनों में, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह बाद की चीज़ रही, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है। सो वेयर आई वॉज फोकसिंग ऑन द इंग्लिश पार्ट। नाउ आई हैव ऑलरेडी अबाउट साइकोलॉजी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट साइकोलॉजी, कैसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में इंग्लिश, कैसे फ्रेम करोगे अपने सेंटेंसेस को, कैसे समझोगे। इंटरव्यू पार्ट में कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, जब उसको बोलोगे ना अपने से अपने सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, उसको साफ दिखेगा बंदा कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट है, कितना पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है मुझे, ठीक है। सो लॉट ऑफ OLQs यू आर गोइंग टू शो दैम, ओके। सो इन GTO पार्ट देयर इज़ अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पूरा इंग्लिश में होता है, 15 मिनट्स का एक, समटाइम्स आई थिंक 20 मिनट्स का हुआ था, समटाइम्स इट वाज ऑफ 15 मिनट्स, 15-20 के बीच में ही था। 20 मिनट्स का डिस्कशन, देन अगेन एक और GD 20 मिनट्स का डिस्कशन, देन आफ्टर GD देयर विल बी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज या ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लिखने हैं, देन उसके बाद अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने जो बंदे हैं ग्रुप के उनके साथ डिस्कस करना है। एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश। नाउ on the very first day, on the third day, like GTO फर्स्ट डे GD हो जाएगा, GP हो जाएगा, फिर होगा आपका लेक्चरेट में आपको 3 मिनट बोलना पड़ेगा लेक्चरेट में, ठीक है। 3 मिनट इंग्लिश में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है। डोंट यू थिंक कि अब किसी को क्या है कि लेक्चरेट में वो सोचते हैं भाई 3 मिनट हम क्या बोले हैं, हमसे तो बोला ही नहीं जाता, और 3 मिनट में फिर हम कंटेंट क्या। यार इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, आई नो लेक्चरेट में क्या बोलना है, मैंने अपने लेक्चरेट में क्या बोला था, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, रियली बिलीव मी। एक एक गलती जो मैंने की है ना अपने पिछले इंटरव्यूज़ में, और इसमें क्या चेंज किया था, और मैंने इसमें क्या परफॉर्म किया जिससे कि मैं रिकमेंड हुआ। देखो आई थिंक कि रिकमेंडेशन डज नॉट मीन कि तुम OLQs तुम्हारे पास कूट के भरी हैं, तुम गए SSB देना और तुम रिकमेंड हो गए। आपने देखा होगा रिकमेंडेड बंदे भी आउट होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास उन्होंने जो OLQs दिखाई ना उस टाइम, वो इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए। अब इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए तो इस बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए या स्क्रीन आउट हो गए। सो द मीन टू से SSB में चाहिए आपकी परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस। तो मैंने अपने जो लास्ट अटैम्प्ट में कैसी परफॉर्मेंस अपने अकॉर्डिंग दी थी, मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे जिससे कि मैं रिकमेंड हुआ, और क्या क्या हुआ मेरे SSB में, सब कुछ बताऊंगा। जस्ट वेट अ लिटिल, ठीक है। अभी जो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि आपके इंटरव्यू पार्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो अभी से तुमको करनी चाहिए, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह बाद की रही, लेकिन अभी से जो करना है वो बता रहा हूँ मैं।
तो देखा आपने, लेक्चरेट्स के लिए, जीडी के लिए, जीपी के लिए आपको पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तब आप उन लोगों के साथ compete कर पाओगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई टोल्ड यू टू इम्प्रूव दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बताऊँगा कैसे इम्प्रूव करनी है, क्या क्या देखना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, ठीक है, सब बताऊँगा। रुक तो जाओ अभी। अब नाउ सेकंड चीज़ आती है आपकी हॉबीज़। आप अपनी हॉबीज़ के और जो गेम्स हैं, क्या उन चीज़ों को आपके बारे में पता है? आपको पता है उन चीज़ों के बारे में? आपने हॉबीज़ में लिखा रीडिंग बुक्स, तो भाई रीड बुक्स, ठीक है। अगर रीडिंग बुक्स है तो रीड करो बुक्स को। उस इंटरव्यूअर को 4 किताबें पढ़ के चूतिया मत बनाओ, ठीक है। सॉरी फॉर दी ऑकवर्ड लैंग्वेज, लेकिन भाई वो बंदा हम जैसे लोगों को पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ ले चुके हैं वो लोग। आपको लगता है कि आप 4 या 5 किताबें पढ़ के, जिनका रीडिंग बुक्स है या जो नई नई हॉबी डेवलप करते हैं, 4-5 किताबें पढ़ के उनको बेवकूफ़ बना पाओगे? सो आई मीन टू से कि जो भी तुम्हारी हॉबी है ना, उसको एक तो कंस्ट्रक्टिव रखना। लाइक एक ने लिखा था ऑनलाइन गेम्स करके, पबजी का। डू यू थिंक इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव गेम? ये आर्मी में कैसे हेल्प करने वाला है ऑनलाइन गेम्स में? ये जो पबजी के मैचेस होते हैं बड़े बड़े, इसका वो प्लेयर था, ई स्पोर्ट्स प्लेयर था वो, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, T2 प्लेयर था वो, T2 प्लेयर। तो सोचो उसका कुछ यूज़ है? नहीं है यार। कंस्ट्रक्टिव हॉबी रखो, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बायोग्राफीज़, या जो कुछ भी तुम्हारी हो सकती है, ठीक है। सबकी हॉबी अलग होती हैं। मेरी थी रनिंग था मेरा, और मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। अब यूट्यूब वीडियोस किस चीज़ पे बनाते हो, ये भी क्वेश्चंस किए गए, तो मैंने बोला जियो पॉलिटिक्स वीडियोस बनाता हूँ, स्ट्रेटजी की वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, इंडियन आर्मी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी हॉबीज़ में बताई, ठीक है। तो आप एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, एक हॉबीज़ जो भी हैं उनको और अच्छा करो, जो भी गेम्स खेलते हो उनको कंटिन्यू रखो, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी से करो, ठीक है। तीसरी चीज़, करंट अफेयर्स को ना पढ़ो। करंट अफेयर्स और जो वर्ल्ड नॉलेज है ना, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड की नॉलेज जो है, वर्ल्ड में आजकल चल क्या रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस देखो भाई, कंट्रीज़ के किस किस से क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो अभी से, क्या चल रहा है आजकल, कौन किससे क्या परचेज़ कर रहा है, 2 कंट्रीज़ के बीच में कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, किन किन कंट्रीज़ के बीच में। लाइक सपोज़ अभी G20 का दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, ठीक है। G20 में क्या क्या है भाई, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्वेड क्या है, अभी SCO की समिट, अभी SCO का वर्चुअल समिट हुआ था, यू नो, आई थिंक 4 जून या 4 जुलाई को, हाँ 4 जुलाई को था, हाँ 4 जुलाई को था। SCO क्या है, कितने कंट्रीज़ हैं, हेडक्वार्टर कहाँ हैं, अपने कंट्री में SCO की मीटिंग हो रही है एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ SCO। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, आजकल जो वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में क्या क्या चल रहा है, यू ऑल हैव टू सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंग्लिश का पार्ट अच्छे से करना है तुम्हें, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी हॉबीज़ को और अच्छा करो, कुछ भी हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी, ठीक है। हॉबीज़ हो गए आपके, गेम्स खेलते रहो, जो भी गेम्स खेलते हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई, और ये करंट अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन चीज़ों को देखो, यूट्यूब चैनल से देखो, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस आती हैं नई नई, करंट में क्या चल रहा है, स्टडी IQ, भारत मैटर्स, आदर्श गुप्ता, और भाई कई सारे चैनल्स हैं, ठीक है। वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन सर का, तो उन सारे सोर्सेज पे जाओ, वहाँ से देखो क्या क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि भैया इंग्लिश, अब ये इम्प्रूव कैसे करें। इतनी लंबी वीडियो हो गई,
जब से बताए जा रहे हो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अब ये तो बताओ इम्प्रूव कैसे करनी है। देखो भाई, जो भी मैंने बताया अभी तक 20 मिनट की वीडियोस में, देखो आपको समझो इंग्लिश तो है ही है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वरना अगर तुम सोचो ना कि एंड टाइम पे मैं करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड की क्या चल रही है, वर्ल्ड की नॉलेज, या फिर मैं बोलूँ जियो पॉलिटिक्स के मूव्स क्या हो रहे हैं, भाई जियो पॉलिटिक्स में हर एक दिन एक नया चाल चली जाती है, हर एक दिन एक नई चाल चलते हैं ये लोग। यूएसए, रशिया, ठीक है, रशिया, चाइना, ये सब के अलग अलग प्लान्स होते हैं डेली डेली। कोई कुछ नया कर रहा है, कोई कुछ नया कर रहा है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये नहीं कि आप एसएसबी के 1 महीने पहले ये सब पढ़ के जा रहे हो और सोच रहे हो कि, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे जैसा बंदा मिल गया ना, तुम 1 महीने की पढ़ के जाओगे, मैं हमेशा 4 से 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के जाता हूँ। नॉट ओनली करंट अफेयर्स, क्या क्या किन किन कंट्रीज़ के बीच में कौन कौन से कॉपरेशंस हुए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं, किन किन चीज़ों के बीच में डील्स हुई हैं, किसने किसको क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है, डिफेंस में कौन कौन सी डील्स हुई हैं, कौन सी कंट्री नए नए स्टेप्स ले रही है किसी और कंट्री के अगेंस्ट। लाइक नेटो प्लस बना, क्यों बना नेटो प्लस बना, क्यों बना? क्वेड 2.0 की बात हो रही है, यू नो क्वेड 2.0 भाई, हो रही है बात क्वेड 2.0 की, ठीक है, क्यों हो रही है? हमारे पास तो क्वेड है। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, आपको 1 महीने की नॉलेज नहीं, आपको 4-5 महीने की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। क्योंकि जब, और मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को, वहाँ पे जब जीडी में पॉइंट्स बोलोगे ना इन नॉलेज को लेके, देखना तो मैं बंदे सुनेंगे भाई। अपने पॉइंट्स को इतना अच्छा रखो ऐसे कंटेंट और अपने साथ पूरे फैक्ट के साथ कि देखो ये हुआ था। अगर कोई भी जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक आ गया आपकी जीडी में, तो आपको जियो पॉलिटिक्स के ऊपर नॉलेज तो हो, कौन सी कंट्री क्या कर रही है, हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, कोई एक लेना होता है। लाइक अपनी कंट्री को, इंडिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए, सेकंड मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए आर्म फोर्सेस का, थर्ड थिंग होनी चाहिए कि ये जो डिफेंस कॉपरेशंस होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ मिलिट्री अलाइंस होते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, ये होना चाहिए। आपको सबको पता होना चाहिए। इकोनॉमी है तो क्यों, इकोनॉमी पे पॉइंट पता होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, आर्म फोर्सेस, मिलिट्री अलाइंस, अगर मिलिट्री अलाइंस बोल रहे हो तो ये तो पता हो कि भाई मिलिट्री अलाइंस ने कैसे किसको क्या हेल्प करी है, ये चीज़ तो पता हो आपको। और अलाइंस पता होना चाहिए, इंडिया किस किस से अलाइंस कर रहा है, क्यों कर रहा है, ट्रेड के लिए कर रहा है या प्राइवेट इंटरेस्ट है उसके कुछ। अब प्राइवेट इंटरेस्ट किस चीज़ से? जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेने के लिए। भाई देखो मैं बहुत डीप, मतलब मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, तुम समझ पाओ या नहीं मेरे ये समझ नहीं आ रहा। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ, या जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए, या बोल सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स के लिए, मतलब यार कई सारे टर्म्स होते हैं इनमें, ठीक है। आप होप सो समझ रहे होगे मेरे कहने का क्या सेंस है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड अफेयर्स में आती हैं, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ अपनी हॉबीज़ पे, वर्ल्ड अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, अपने देश में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को अभी से रखो, जिससे कि आप अपने जीडी में अच्छे से बोल पाओ, और बाकी आपकी नॉलेज जो है, ये जो आप इकट्ठा करोगे, ये आपके इंटरव्यू पार्ट में दिखे, ठीक है। अब ना बात करते हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। नाउ वन थिंग यू कैन सी, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। अब आप बोलोगे भैया आपने कैसे इम्प्रूव की? देखो मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ भाई, ठीक है, मैं भी एक विलेज का बंदा हूँ जो शुरू में इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। टेलीग्राम पे डिस्कशंस चलते हैं बंदों के। डिस्कशन से मतलब है कि इंग्लिश के कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें बंदे बात करते हैं आपस में, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है। तो देखो उस डिस्कशंस में क्या हो रहा होगा, आप एंटर करोगे ना, तो लड़का पूछ रहा होगा दूसरे लड़के से, और बता भाई व्हाट अबाउट योर गर्लफ्रेंड, सो मतलब रिलेशंस और अ लॉट ऑफ बेस्ड थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। सो यू हैव टू इंटरप्ट दैम, उनको इंटरप्ट करना है बीच में, देन से सॉरी टू इंटरप्ट यू। देख रहे हो हाउ टू कन्विंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैन, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर यू डिस्कशिंग नाउ।
वो बोलेंगे भाई जन नथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग ये वो, ठीक है। सो देख रहे हो आप यहाँ भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी अगर आप भी कुछ फालतू की बात बोल रहे हो कोई नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में बोल तो रहे हो। अभी मैं यही करता था, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलता था, थोड़ा स्लो बोलता था, लेकिन ये इंक्रीज़ हुई है स्पीड। बोलो सो नाउ आई थिंक कि वी शुड डिस्कस ऑन सम ऑन वन थिंग विच आई थिंक, जैसे मैं उनको बोलता था कि अच्छा एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पर्सनल थिंग्स आपके बारे में, मतलब एक दूसरे के बारे में। सो नाउ आई थिंक एक ऐसा करते हैं, आई हैव अ टॉपिक और उस टॉपिक पे आप लोग अपने ओपिनियंस देना। तो मैं टॉपिक दिया करता था कि अच्छा इंडिया है, तो इंडिया में जो गेम्स हैं ना, इंडिया के जो गेम्स हैं या फिर जो मेडल्स हैं वो और कंट्रीज़ से कम हैं अभी ओलंपिक्स में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, पहला रीज़न आपको क्या ये लगता है, या यू थिंक कि दिस इज़ द रीज़न, और द थर्ड आई थिंक इट मे बी द रीज़न, सो व्हाट डू यू थिंक। तो वहाँ पे जो भी 35-30 बंदे होंगे ना, वो सब अपने अपने डिस्कशंस, वो सब अपने अपने पॉइंट देंगे कि आई थिंक कि जेंटलमैन, वो बोलेगा कि अच्छा आई थिंक कि दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल थिंग बिहाइंड दैट। वो एक दूसरे को काउंटर भी करेंगे, नो नो आई थिंक कि दिस विल बी द मेजर थिंग, क्योंकि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप देखो कितने सारे बंदों के आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं, उनकी थिंकिंग पता पड़ रही है, उनसे आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि बंदे क्या डिस्कस कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि आप उनके सेंटेंसेस को देख पाओगे कि वो कैसे फ्रेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पीकिंग, तो ठीक है स्पीकिंग आप करोगे, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग। आप सुनो बंदों को हाउ दे आर फ्रेमिंग, लाइक इफ़ आई एम सेइंग समथिंग टू यू इन इंग्लिश, then you need to understand how I am framing my sentences, ठीक है। if I am saying something, if I am saying anything to you, then you need to understand how I am framing, okay। so the thing that is you have to enter in discussions, otherwise अगर आप ना ऐसे कोई भी ये जो बंदे डिस्कस करते हैं इनके बीच में मत घुसो, कोई बात नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ SSB चैनल्स, ठीक है, SSB चैनल्स हैं उधर, कई सारे SSB चैनल्स हैं। SSB जर्नी है एक, टेलीग्राम पे SSB जर्नी, RPA स्पीक्स करके एक ग्रुप है, रोड टू रिकमेंडेशन है, SSB इंग्लिश प्रैक्टिस है। तो कई सारे ना स्पीकिंग ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, उन पे जाओ, वहाँ पे बोलो, और जब तक आप बोलोगे नहीं भाई तब तक इम्प्रूव होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 15 दिन में पूरा अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे, यू नीड सम टाइम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, you have around more than 2 months, and I am sure that if you really want to crack your SSB, your English should be at the top, your communication skills should be at the top, and to improve this you have to enter in the discussion, you have to speak something। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपका फियर नहीं जाएगा बोलने का, और जब तक फियर नहीं जाएगा भाई तब तक कुछ नहीं होगा। अगर बंदे तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं बोलते टाइम, कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो, घिसा पिटा कुछ भी बोलो। मैं जब शुरू में बोलता था, मैं अपनी इंग्लिश पे खुद हंसता था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है, मुझे खुद समझ नहीं आता था मैं इतना गंदा कैसे बोल सकता हूँ। बट लेटर ऑन आई इम्प्रूव दैट ना। और मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है रामेश्वर सिंह, ठीक है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं जब भी उससे बात करता था, सो वी जनरली टॉक्ड इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में ही बात करते थे। लाइक देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो लड़के, ठीक है, बॉयज़ के लिए या किसी के लिए, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, और उसको अगर इंग्लिश अगर वो समझ सकता है या समझ सकती है, तो भाई बोलो इंग्लिश में बात करो भाई, ठीक है, बोलो यार 2 महीने बाद SSB आने वाली है, जो भी बात करेंगे इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, जो भी बात करेंगे, अगर वो सपोर्टिव होगा सामने वाला बंदा तो तुमसे इंग्लिश में बात करेगा। और भाई वहाँ पे बात करोगे ना इंग्लिश में तो 1-8 घंटा तो वैसे भी पता नहीं पड़ता, ठीक है। तो यू नो कि हाँ पता नहीं पड़ता, ठीक है।
तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो अपने दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड हो या कोई और हो, ठीक है, इट इज़ बेस्ट फ्रेंड नॉट बॉयफ्रेंड, ओके। इट इज़ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, क्योंकि ये एक जनरल हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, इस चीज़ को एक टास्क मत मानो कि तुमको इंग्लिश का कोई टास्क है। आप डेली डेली स्मॉल स्मॉल चेंजेस करो, ठीक है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस करो, और ये आपको ना, ये आपको दिखेगा कुछ सालों में, कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने बाद आपको दिखेगा कि हाँ भाई आपने इतना इम्प्रूव कर लिया है कि आप अच्छे से बोल पा रहे हो, अपने पॉइंट्स को रख पा रहे हो, ठीक है। तो एक तो टॉक से कर सकते हो, दूसरा डिस्कशंस में चले जाओ, टेलीग्राम के डिस्कशंस में चले जाओ। तीसरा, जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश में, या फिर एनी जियो पॉलिटिकल टॉपिक, लाइक आई हैव कवर्ड सम रिलेशंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो ऑल आर अवेलेबल इन इंग्लिश। सो वॉट आई डिड, अब मैं कैमरे के सामने आता था, एंड यू नो वन थिंग, इफ़ यू आर एबल टू फेस द कैमरा देन यू आर द किंग। अगर तुम कैमरे को फेस कर सकते हो ना, तुम दुनिया में किसी भी ऑडियंस को फेस कर सकते हो। रियली आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने कैमरे को फेस कर लिया ना, रिकॉर्ड करो वीडियोस को, आप देखो आप कैसे बोल पा रहे हो, ठीक है। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, किसी भी टॉपिक को रिकॉर्ड करके आप देखो कि आप कहाँ कहाँ हेजिटेट हो रहे हो, और अगर हेजिटेट हो रहे हो तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं, क्या वो अंडर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है आपका, क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट आ गए। तो ये रिकॉर्ड से होगा, ठीक है, रिकॉर्ड करो वीडियोस को। तो आप जब इस चीज़ को कर लोगे, यू विल एबल टू फेस अ ऑडियंस, और भाई कहीं भी डिस्कशन चल रहा होगा वहाँ भी, तो एवरीवेयर यू विल परफॉर्म बेटर, ठीक है। अब मैं बात करूँ इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह या जियो पॉलिटिक्स की वीडियोस, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने यूएसए कवर कर रखा है, चाइना कवर कर रखा है, ठीक है, और हमारा ये नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, ये कवर कर रखा है। यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, रशिया भी कवर कर रखा है मैंने, ठीक है। तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर रखी हैं, जियो पॉलिटिक्स की कुछ वीडियोस कवर कर रखी हैं, मैंने इंडियन आर्मी के कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ब्लू स्टार है, ब्लू बर्ड है, तो लॉट ऑफ ऑपरेशंस मैंने कवर कर रखे हैं। तो आप उन चीज़ों को भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने हिस्ट्री, उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता रखा है, तो वो तुम्हें थोड़ा हेल्प कर देगा, ठीक है। बाकी अपना करंट पे भी ध्यान रखना, और बाकी अगर कोई भी इश्यू है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ भाई देखो, कई सारी चीज़ हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के होंगे एसएसबी से रिलेटेड, क्योंकि मेरे भी थे, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अभी से क्या कर सकते हो। कुछ दिन बाद वीडियोस ले आऊँगा, क्या क्या गलतियाँ मैंने की, क्या नहीं करनी है, कौन कौन से टेस्ट में क्या क्या परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग आई विल टेक टू यू, लेकिन भाई थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे भी अपना पढ़ना होता है सीडीएस और एफकेट के लिए, तो उसके लिए वीडियोस के लिए थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, बट हाँ आप लोगों के लिए मैनेज कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। अभी भी देखो ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये अभी 12 बजे हुए हैं रात के, और मैं 12 बजे रात के शूट कर रहा हूँ वीडियो को, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी नॉट शूट। तो अगर कोई और डाउट है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरी इंस्टा आईडी its_rajput_गर्भित पे भी पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। its_rajput_गर्भित, वहाँ भी पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो अपना एसएसबी से रिलेटेड। और बाकी अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया है कि अभी तुम्हें फ़िलहाल क्या करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, बता दिया मैंने कैसे करनी है। सेकंड, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऑल दोज थिंग्स। तीसरा, जो तुम्हारा हॉबीज़ है उनको और अच्छे से करो, लॉजिक हॉबीज़ बनाओ, ठीक है, लॉजिकल हॉबीज़ बनाओ। कंस्ट्रक्टिव हॉबीज़ होनी चाहिए जिससे दिखे कि हाँ बंदा कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें करो अभी फ़िलहाल,
ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिज़ल्ट आ जाने तो एनडीए का, उसके बाद फिर और ज़्यादा इसको बूस्ट करते हैं प्रिपरेशन को, एसएसबी प्रिपरेशन को, और आपके साथ मैं हूँ, सो डोंट वरी, आई विल गाइड यू फॉर दैट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो जय हिंद, जय भारत।